Hello, everyone. I hope you're all having a wonderful day so far. Welcome to the 54th fortnightly session on soybean innovation, health processing, and business development, tailored exclusively for students from grade 3rd to 12th. It's a pleasure to have each of you join us today. I am Ankit Arora, your moderator for this session, and I'm honored to guide this session. Before we delve into today's topic, I want to express my sincere gratitude to all of you for joining with us. Your participation truly enhances this gathering. I would also like to mention that we are thrilled to have you join us today as we explore this crucial aspect of education. Our esteemed speaker, Dr. Manoj Kumar Tripathi, Principal Scientist Biochemistry, ICAR CIAE Bhopal, will guide us through the soybean innovation, their importance in agriculture and nutrition, health benefits, how they are processed, business opportunities, market demands, entrepreneurship, and many more things through this session. For those new to this platform, I would like to inform you that CAMP, the Knowledge and Awareness Mapping Platform, is not just an initiative. It's a commitment to bridging the gap between education and practical application. Our mission is to cultivate a scientific mindset among students while nurturing their hidden talents. Coming back to our session, I would like to highlight that soybean innovation, health processing, and business development is crucial for us as it equips us with comprehensive knowledge about the nutritional and health benefits of soybeans, sustainable agriculture practices, and modern processing techniques. Additionally, it explores the economic and entrepreneurial opportunities with the soybean industry, enabling us to be inspired and understand the multifaceted impacts of soybeans on health, agriculture, and business development. After Dr. Tripathi's presentation, we will have an interactive question and answer session where you can ask questions and share your thoughts. We encourage active participation to make this session as informative and engaging as possible. Thank you again for being here. Let's make this session a fruitful and enriching experience for everyone. I would also like to mention that CAMP, we organize scientific excursion at various prestigious labs and organizations like the CSIR, ISRO, DRDO, and many others. If you would also like to participate in such excursions and get a chance to explore, discover, and engage with various scientific disciplines in a real-world setting at various eminent CSI laboratories or research organizations in India, then do check out the link below to learn more about how you can participate. For any support, you can even get in touch with our team to the given helpline number in the chat box. So without further ado, let's begin our journey into the realm of soybean innovation, health, processing, and business development, where Dr. Tripathi will guide us about soybean, their importance in agriculture, nutrition, health benefits, how they are processed, business opportunities, market demands, entrepreneurship, and many more things. I'd like to invite Dr. Tripathi. He is currently working as principal scientist, biochemistry at APPD, ICAR CIAE, Government of India, Bhopal. He has published more than 100 research papers in international and national journals of repute, 58 book chapters, 50 popular articles he has authored and edited, 14 books and 4 books in press, considering including Springer, Elsevier, CRC Press, etc. 5 technical bulletin and 101 technical quality manual for NABL accreditation. 2 books received awards for Book of the Year and Bestseller Book, guided more than 50 PG and advisory member of 20 PhD students. He has developed more than 34 process technology on 20 national projects as PI and co-PI, patent granted, patent applied for 3 products, commercial many process technology, and registered genes in NCPL. Dr. Tripathi, I'd like to hand over the stage to you now, welcoming you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Mr. Ankit, thank you very much for the nice introduction. And as per I looking, most of our audience are the student. Specifically, I think between the group of the 5 to 12. Okay, this is very good. This is the first time
and first experience from me to deliver such something to this audience group. So I think I can just share my PPT and discuss too. Uh, my PPT is audible. My PPT is visible. Ankit ji? Yes, sir, it's visible. I Yeah, can. yeah. So okay, this is in slideshow mode. Okay. Good evening to everyone, dear students, and I think some parents and some teachers are also joined here. So, before delaying anything, just I come to our topic. The topic which we are going to discuss are the soybean innovation, health, processing, and business development. And if you see this, the first slides in my cases, you are looking uh, some of the fruit, vegetables, soybean, and some other things. And these all are the very much related to the link to the nutrition and comes from our diet and finally become as a food ingredient. So. I'll just check. it. Okay. Mhm. Okay, friend. So come to the my first slide. If you see, this is the slides, and basically before going to the this soybean topic, soybean is a very good source of the foods and basically the quality foods. And if you see my slides, something is looking. So there are several confusion between the food, diet, and nutrition. And before going to our slides, I just here clarify what are the food, what are the diets, and what are the nutrition. Basically, the foods provide the essential nutrient which is needed for your daily energy, growth, and body function. So these are the any component that fulfill this requirement is the food. Another terms is the diet, and this diet refers to the some of the consumed foods or drinks which completed, which fulfill the this individual needs and preference. And nutrition is again one of the important terms, which is the process of intake, utilization of these nutrients, which is responsible for to maintaining the food daily requirement, and finally thus preventing the diseases. If you see the nutrient food, this is the very common terms used in your class, in your by your teachers. That is the nutrition. So one thing here, if you see, there's a balanced diet. Actually, balanced diet is the this is the need of your body for the proper supply of your energy, for growth, for the development, and stay full. So any food component which provides this requirement, which fulfill this requirement of our body is basically the balanced food. Means our body have several requirements and that requirement is not fulfilled by the one component. That's why this balanced diet concept is there. So if you see in your diet, water is also there, carbohydrates is also there, protein is also there, some fats are also there, vitamins and minerals are also there, fibers are also there. So when including all the things and complete all the desire of our body for energy, nutrition, growth, and daily metabolic activity, and finally it's come the balanced diet. So not only one food component is enough to provide all the things. That's why all when I include all these things, we just ask this is the balanced diet. And if you see the healthy eating plan, and today everything is going on the foods. Now if you see, we are just suffering so many of diseases, so many of things because of we have not a healthy diet, we have not a healthy foods. So most of our foods either comes from the market, either comes from the some industries, either it is very highly processed, not properly cooked. And that's why this healthy eating plate is very important. Means healthy eating plate, if you see any fruit, our fruit in the proper fruits in whole farm, either fruit or vegetable, is very healthy. But when you cooked, but when you remove their parts and processed, it is not healthy.
So by healthy plates, our diet will be healthy requirement. And if you see this, uh, how can we achieve our healthy diet? So by use of the whole vegetable or less processed vegetables, less processed fruit or whole fruit, whole grains, healthy protein, and definitely all comes from the natural sources, comes from our the garden as well as kitchen. Water is again very important component, but because this just catalyzed or improved our metabolism. So these are the some components by which we can make the healthy plates. And if you see this slide, why food is important? Food is not only provide the energy, not only the source of nutrient, but food provides so many of the things that is the very much requirement of our body for the proper function, proper metabolism, and proper synthesis. Like if you see the foods gives energy, that is energy comes from the foods. They also give several enzymes and several protein and several fats, which is required for the energy or building block. They also provide the vitamins and minerals, and these vitamins and minerals are the basically basic souls for our so most of the enzymatic reactions. अगर आप देखें तो दिन भर में आप कितने काम करते हैं, कितनी प्रोसेस बॉडी के अंदर चलती रहती है। आप फूड लेते हैं, उससे एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को हम सिंथेसिस और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में करते हैं। हमारे पास कई बीमारी भी होती है जिसको हम रिपेयर करते रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है। तो इस फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर्ड सम फूड मॉलिक्यूल कंपोनेंट जिसको आप बोलते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, मिनरल्स दैट आर बेसिकली कम्स इन द फ्रॉम दिस फूड। तो फूड को आप देख सकते हो, फूड प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द दिस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसके साथ-साथ आप देखें तो फूड आल्सो डिलीवर सो मेनी थिंग्स। They also just in some cases in our mostly moment and mostly occasions they provide our several things. When we become the disease conditions और हमको अगर कोई आपको कट भी जाता है या हमको फीवर भी हो जाता है या हमको कोई भी बीमारी होती है, for that purpose some immunity system things and some other requirement are higher enzymatic reaction required. उस केस में भी हमारा फूड इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं the food is not only the source of protein, fat, energy, but they are also source for our willingness, our freshness, our power, our energy, feeling goods, our beauty or yourself. हमारे जो ब्यूटीज है या हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, each and every is maintained by the food sources. So you can imagine foods हमारे लिए कितना important है। Most of the situations में the things required by the body is basically fulfilled by the food. So this is the importance of the food. एंड इफ यू कम्स द करंट सिनेरियो जो आप देखो बहुत ही जो हमारी सिनेरियो है वहाँ पे करंट सिनेरियो के केस में 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन हमारी जो है दे आर द वेजिटेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ दे सफर ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ देम के किसी को एनर्जी की कमी है, किसी को मिनरल की कमी है, जिसको आप बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एंड 65 to 70% लोग ऐसे हैं। Animal proteins are also very costly and have the cholesterol risk. Due to this, they are not preferring for the all the person. Mostly जो vegetarian है वो animal source को use नहीं करते हैं इसलिए, और animal protein source थोड़ा costly भी होता है और उसके साथ सब cholesterol risk होता है जो body के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। That's why this animal protein is also not fulfilled. 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर देख सकते हैं कि दे आर बिलो पॉवर्टी। हमारे देश में गरीबी बहुत है, तो 40% लेवल लोग उस लाइन के नीचे हैं। तो दे हैव नॉट इनफ मनी टू परचेज दिस फूड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम एनिमल प्रोटीन सोर्सेज या अदर प्रोटीन सोर्स। बट अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें, आज के फूड की बात करें, हम लोग भी इस काम पे वर्क कर रहे हैं कि वी आर नॉट अप्रोचिंग फॉर ऑल द थिंग्स टू द मेडिसिन। हर चीज के लिए हम मेडिसिन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि व्हेन वी मेक आवर फूड एंड डाइट हेल्दी, डेफिनेटली हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन दैट केसेज हम ऐसे फूड को सेलेक्ट कर रहे हैं या ऐसे फूड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज बीइंग साइंटिस्ट कि जो आपका फूड एक मेडिसिन की तरह काम करे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इज बेसिकली इशूड बाय द सोयाबीन। सोयाबीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सोयाबीन हमारा एक क्रॉप है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन की सीड होती है, सोयाबीन को हम ग्रो करते हैं, कई वेराइटीज सोयाबीन की है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सोयाबीन को मेजॉरिटी ऑफ लोग पर्सन दे नोन एज ए प्रोटीन। इसमें प्रोटीन का जो सोर्स होता है ये बेस्ट प्रोटीन का सोर्स होता है, हाई क्वांटिटी में प्रोटीन सोर्स होता है। तो मोस्टली जो आजकल प्रोटीन की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है,
that malnutrition can be recovered by the use of soybean. अगर आप देखें कि अगर सोयाबीन को हम डायरेक्ट फूड यूज में करते हैं, अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं, तो दे आर वेरी गुड सोर्स फॉर टू इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। हमारी अभी हम आपको बताएंगे कि सेवरल हमारी बॉडी के जो डिजीजेज हैं, जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, वो हमारे सोयाबीन से हम एड्रेस कर सकते हैं। तो सोयाबीन को हम दो पार्ट में अगर बांटते हैं कि सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन, एंड सोयाबीन इज अ गुड सोर्स फॉर द न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल बच्चों हम उसको बोलते हैं द एनी पार्ट ऑफ फूड विच एक है अदर देन न्यूट्रिशन। जैसे आपने प्रोटीन का सोर्स लिया, आपका फूड का पार्ट, उसके साथ साथ वो अगर हमारे हेल्थ को भी हेल्प करता है, तो वो हमारा आजकल न्यूट्रासिटिकल है, हेल्थ फूड उसको बोलते हैं। तो जितनी भी हम बात करें, इन ईच एंड एवरी क्राइटेरिया दिस सोयाबीन इज वेरी सुटेड। अब बच्चों अगर आप सोयाबीन की हम बात करते हैं, तो सोयाबीन को हम गोल्डन सीड बोलते हैं। सोयाबीन इज जनरली नोन एज गोल्डन सीड। क्यों गोल्डन सीड बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन प्रॉपर्टी, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी इट हाईली प्रेफरेबल प्रॉपर्टी। इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कि इस सोयाबीन का एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस होता है। सोयाबीन की अगर हम क्रॉप के बेटे, दिस सोयाबीन हैव हाई यील्ड पोटेंशियल। ठीक, डिफरेंट क्लाइमेट्स में इसको हम ग्रो कर सकते हैं, सॉइल्स भी इसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, एंड ड्यू टू दिस दे आर कंट्रीब्यूटिंग वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से जगह जगह पे इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ की अगर बात करते हैं, तो आपको सबको पता होगा बच्चों कि सोयाबीन एक लेगुमिनस प्लांट होता है, और जो भी हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड फाइनली एड दिस नाइट्रोजन टू द सॉइल। ओके, बिकॉज इनके रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को सिर्फ फिक्स करते हैं। फाइनली अगर इस नाइट्रोजन को हम फिक्स करके सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम सोयाबीन को एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। डेफिनेटली अगर आप इतनी चीजें जो करता है, सॉइल के हेल्थ को भी बढ़ा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो रहा है, किसी भी सॉइल में हम जहाँ भी रहें, तो डेफिनेटली उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, उससे हमको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और हम इसको अपने ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपनी कंट्री के जो हमारा इकोनॉमी है, जो मनी है, उसमें हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये भी रीजन है कि इसको हम गोल्डन सीड बोलते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि सोयाबीन इज जस्ट कंसिडर एज ए न्यूट्रिशनल पावर हाउस। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे सोयाबीन को हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं उसका पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट वेरी गुड क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। जिसमें आपका अगर देखें, प्रोटीन की हम बात करते हैं, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी की एंजाइमेटिक रिएक्शन, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, हर वक्त हर जगह इस प्रोटीन का रोल होता है। प्रोटीन में कुछ ऐसे भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। बेसिकली प्रोटीन को अगर आप डिवाइड करते हो, तो एक एक यूनिट की हम बात करते हैं, तो जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। वो अमाइनो एसिड्स हमारे या तो हम अपनी बॉडी भी बनाती है या हम बाहर से लेते हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स जिसको हम बना लेते हैं उसको हम नॉन इसेंशियल बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इट्स रियली नीडेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी, लेकिन हम उसको बना नहीं सकते हैं। इसके लिए हम अदर सोर्स पे डिपेंड करते हैं, और उस तरह के अमाइनो एसिड को हम इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। मतलब दो तरह का हमारा अमाइनो एसिड होगा, इसेंशियल जिसको हम बना नहीं सकते हैं, और नॉन इसेंशियल जिसके लिए हम हमारी बॉडी बना सकती है। तो बच्चों में आपको ये बताऊं कि जितने भी हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको बॉडी की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा हमारा प्रोटीन में होता है। इसलिए प्रोटीन को एक बहुत ही कंप्लीट प्रोटीन सोर्स माना जाता है। और दूसरी चीज, ये हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स होता है। तो मोस्टली पर्सन जो प्लांट या वेजिटेरियन है या प्लांट सोर्स पे डिपेंड होते हैं कंप्लीट प्रोटीन के लिए, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स होता है। इसीलिए ये हमारे जो भी जितने भी वेजिटेरियन या वेगन्स होते हैं, दे सोयाबीन इज कंसिडर एज अ वेरी बेस्ट क्वालिटी सोर्स ऑफ द प्रोटीन। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं अदर न्यूट्रिएंट की, कि प्रोटीन के अलावा इसमें वेरी अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है, हेल्दी फैट जो होता है वो हेल्दी क्वालिटी का होता है, या उसको हम गुड फैट की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें विटामिन मोस्टली कॉमनली विटामिन बी और विटामिन के का भी बेस्ट सोर्स होता है। कई मिनरल्स जिसमें हमारे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम का बेस्ट सोर्स होता है। तो आप देखेंगे ये सारे वो हमारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिक्वायरमेंट के लिए हम सोयाबीन सोर्स पे डिपेंड हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा एक कंपोनेंट बताया आइसोफ्लेविन। बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया कि सोयाबीन इज जस्ट कंसिडर एज ए गुड सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट एज वेल एज न्यूट्रासिटिकल। मतलब ये हमारे न्यूट्रिशन के अलावा
हमारे हेल्थ को भी प्रमोट करता है। इसलिए ये जो एक कंपाउंड हमने बोला है आइसोफ्लेवोन, उसके बाद बोला है फाइटोएस्ट्रोजन। हम थोड़ा सा बताएंगे कि हमारी बॉडी का अगर आप अपना स्ट्रक्चर देखें तो दो, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल के फंक्शन अलग होते हैं, फीमेल के फंक्शन अलग होते हैं। मोस्टली ये हार्मोन बेस्ड होता है। तो जो हार्मोन हमारे फीमेल में होता है उसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो जो हमारा सोयाबीन होता है, यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है फाइटोएस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन हम एक उस सोयाबीन में भी होता है, क्योंकि ये प्लांट से निकलता है, इसीलिए हम इसको फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजन एक फ्लेवोनाइड कंपोनेंट का एक पार्ट होता है। तो इस ये फ्लेवोनाइड कंपोनेंट इतना अच्छा होता है कि ये हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छा प्रमोट करता है। और कई तरह के आपके कैंसर जो हम रिपोर्टेड है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप सोयाबीन को लेते हैं तो आपको निकट भविष्य में कैंसर नहीं होगा, उसको मिनिमाइज करने में इसका रोल होता है। सो दिस आइसोफ्लेवान इज द कंपोनेंट of the soybean that is very much useful for the health benefits. That's why the soybean is considered as a golden seed. अगर हम सोयाबीन का इंपॉर्टेंस देखते हैं तो फूड और इंडस्ट्री में भी इसका खूब ज्यादा है। बिकॉज सोयाबीन से फ्रॉम द सोयाबीन वी आर डेवलपिंग ए वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, जिसमें आपको टोफू बोलते हैं। जैसे आपने हम बुफेलो से जो पनीर बनाते हैं उसको पनीर बोलते हैं, लेकिन व्हेन वी प्रिपेयर द पनीर फ्रॉम द सोया मिल्क उसको हम टोफू बोलते हैं, टेम्प बोलते हैं। सम अदर फूड प्रोडक्ट उसमें जैसे सोया मिल्क वी आर डेवलपिंग, एंडेमेंट वी आर डेवलपिंग, सोया सॉस वी आर डेवलपिंग। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट है। मीन्स वी आर डेवलपिंग ए वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट by using this nutritionally rich component of the soybean. That's why it's very important. Animal feed, सोयाबीन हमारा अगर बाहर की कंट्री के जाए, यूएस जैसे कंट्री में, तो सोयाबीन का मिल आपने सुना होगा। अगर आपने देखा होगा तो सोयाबीन से हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन सम बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, उस बाई प्रोडक्ट्स को वी आर नेम्ड एज ए सोयाबीन मिल। तो ये सोयाबीन मिल इज अ वेरी गुड एंड वेरी हाई प्रोटीन सोर्स, जिसको हम वी आर यूजिंग फॉर द एनिमल फीड, जानवर का भोजन के लिए हम यूज करते हैं। सो अगेन दिस सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल फीड। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देर आर सेवरल प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्री यूज वी आर डेवलपिंग फ्रॉम द सोयाबीन। जैसे आपने नाम सुना होगा बायोडीजल। Nowadays, most of the biodiesels we are developing from the soybean. This is a very good renewable energy source. Soybean oil we are developing from the soybean is basically used in the several industrial applications like आपका lubricants for the development of lubricant in the automobile industry. We are also working for the development of some plastic. आपने नाम सुना होगा biodegradable plastic. So we are developing biodegradable plastic and some other bio-based product. So children, if you see, this is very good and very high importance in the food and industry also. If you see, this is a very good for the environment. Two terms here we have sustainability and carbon sequestration. Basically, this soybean is very much involved in the nitrogen fixation, so reduce the need for synthetic fertilizer. मतलब अगर ये खुद ही अपना नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करता है तो हमें कम से कम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ती है। एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस सिंथेटिक फर्टिलाइजर वी आर जस्ट डिक्रीजिंग द लोड ऑफ केमिकल एंड फाइनली हम अपने इन्वायरमेंट को के इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं और सेव करने में यूजफुल होते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने सुना होगा कि सम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मीथेन जनरेशन की बात करते हैं, वहां भी हमारा सोयाबीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग वेरी लो लेवल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वेरी लो लेवल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। So if you see these two way, they are also very much useful for the environmental benefit. अब आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन देयर वन एस्पेक्ट इज द न्यूट्रिशन एंड अदर एस्पेक्ट इज द न्यूट्रास्यूटिकल। इफ यू सी सोयाबीन है द सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें पहला है कि हार्ट हेल्थ में बहुत उपयोगी होता है, बोन हेल्थ में बहुत उपयोगी होता है। इट्स वेरी मच इफेक्टिव इन द कैंसर प्रिवेंशन, मेनोपॉजल रिलीफ, फीमेल रिलेटेड डिजीज में भी बहुत ही फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेट मैनेजमेंट, आजकल वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द वेट मैनेजमेंट, वहाँ भी हमारा सोयाबीन बहुत ही अच्छा होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, जिसको आपने नाम सुना होगा कि अच्छी बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, तो उसके डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर, बच्चों आपने देखा होगा कि अभी जल्द कुछ समय पहले हमको कोरोना जैसी बीमारी हुई थी, कोरोना हमारे होते, तो वह हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन की जरूरत थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड की आवश्यकता थी, या आप सीधे समझे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की जरूरत थी। तो सोयाबीन वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द आवर इम्यूनिटी डेवलपमेंट। स्किन की जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है, मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम इस सोयाबीन इज डायरेक्टली रिलेटेड। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एनर्जी बनाते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं,
इन सारी प्रोसेस में भी हमारे सोयाबीन इज वेरी हैव द वेरी बेनिफिशियल रोल। मेंटल हेल्थ, इन मेंटल हेल्थ सोयाबीन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे लास्ट में आपने देखा कि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, सोयाबीन के अंदर इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है कि दे आर दे आर वेरी मच इन्वॉल्व। अगर किसी तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है बॉडी में, तो हाई अमाउंट में सोयाबीन में न्यूट्रिशन होने की वजह से दे आर वेरी मच यूजफुल टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल एक डिफिशियंसी डिजीज। सो फाइनली बच्चों, अगर हम ये बात करें कि इनकॉर्पोरेटिंग दिस सोयाबीन इनटू आवर डाइट, वी कैन प्रोवाइड द मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स contributing to overall wellness, removing or minimize the nutritional malnutrition, and definitely we will useful for the disease prevention. That's why this soybean is categorized as the golden seed। यही रीजन है कि इसको हम गोल्डन सीड की कैटेगरी में रखते हैं, या गोल्डन सीड आप बोलते हैं। आप समझ गए हो कि क्यों उसको गोल्डन सीड की हम बात करते हैं। अगर आप बेसिक बात करते हो कि सोयाबीन, सोयाबीन का जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ये लेगुमिनेसी फैमिली, जो दाल आपकी फैमिली होती है उसमें भी आता है। अभी कई जगह इसको आयल वाली फैमिली में भी रखते हैं। और इसकी ओरिजिन दे जस्ट नेटिव फ्रॉम द ईस्ट एशिया। सोयाबीन हैव बीन कल्टीवेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड नैरो नाउ ग्रोन इन वर्ल्ड वाइड। इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो आज का नहीं सीड है, ये बहुत पुराना सीड है। अब अगर आप सोयाबीन की बात यहाँ देखते हैं, तो सोयाबीन को बेसिकली हम 3 या 4 तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम इसको बेसिकली यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड बेवरेज। दूसरा, हम इसको एनिमल फूड फीड के केस में भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर देखें तो सोयाबीन हैव सेवरल इंडस्ट्रियल यूज प्रोडक्ट। सो अगर आप इसको यूज करते हैं जैसे बेवरेज इन प्रोडक्ट, तो सेवरल मार्केट अगर आप जाते हैं या आप किसी मॉल में जाते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम द बेवरेज एंड फूड फ्रॉम द सोयाबीन, लाइक मीट अल्टरनेट। आजकल हम मीट अल्टरनेट यूज करते हैं। टेक्सचराइज सोया प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो कुक्ड एंड रोस्टेड बीन्स की बात करते हैं, तब सोयाबीन बेस्ड पनीर की बात करते हैं, सोयाबीन प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, स्प्राउट्स की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, योगर्ट की बात करते हैं, सम फ्लेवरलेस मिल्क वी आर आस्किंग, सम सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं। तो अगर आप देखें, we have a huge number of this food and beverage that are developed from the soybean. When you come to the animal feed, soybean meal and pet foods are also one of the important components on which we are basically dependent on the soybean. If you just go to the industrial use, there are so many other products like we are developing some adhesive, we are some developing plastic. Specifically, we are working on development of biodegradable plastic, and we are also working on the edible plastic, edible coating plastic, some lubricants, some tires, some biofuels, and some paint, solvent, and coating. So that's why I am asking. Means soybean have a huge potential for development for the food, feed, and industrial area, and that's why this soybean become one of the important part. And we are here in the MP. MP is known for the soybean, so we can develop, we can utilize this soybean for our nutrition, for health, for animal feed, or industrial use. चिल्ड्रेन, इफ यू सी बेसिकली दिस सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं, तो सोयाबीन है विच वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सोयाबीन में हमारे पास 33 to 50% एन एवरेज 40% प्रोटीन होता है। मीन्स अगर आप टोटल 1 कप अगर सोयाबीन लेते हैं, तो उसमें हाफ ऑफ कप इज द प्रोटीन। अब आप सोच सकते हैं कि सोयाबीन में कितना ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है, डेट प्रोटीन वेरी हाई गुड क्वालिटी प्रोटीन, बिकॉज दे कंटेन ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 20% ऑयल होता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके अंदर अपना पाया जाता है। सो दिस सोयाबीन इज बेसिकली वेरी मच सूटेड फॉर द न्यूट्रिशन एंड सम अदर फंक्शंस लाइक आवर मेटाबॉलिज्म, लाइक आवर ग्रोथ, लाइक आवर अदर डेवलपमेंट इन आवर बॉडी सिस्टम। If you see soybean, 5 to 20% of the soybean along with cereal gives maximum nutritional advantage. Means में इसमें जो भी component है, they highly involved in the nutritional compartment. Basically, soybean की अगर हम बात करें तो majority of people is known soybean for the oils. ठीक, तो this is very known for the oils, for the protein and some lecithin. This is the one industrial product which we are working. That is the lecithin. तो जिसमें इतने इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या इतने इम्पोर्टेंट हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। इसीलिए सोयाबीन बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट।
सो ये आप देख सकते हैं कि दिस सोयाबीन इज नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल, इसके अलावा इन आवर कंट्री बेसिकली इन इंडिया वी आर very much concerned on the production of oil, some texturized soya protein, soya milk, soya paneer, soya yogurt, soya flour, some soya fortified bakery products. आपके देखेंगे तो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट सोया बेस्ड है, and several health and snack foods gaining the good acceptability. Means we are developing almost all types of food products with the acceptancy. So you can imagine the soybean, how soybean is important. If you see, this is the some serving size of the soybean. Means if you take the 100 gram of protein soybean, how much the calories in there, how much vitamins are there, how much minerals are there. It will be also discussed. मतलब अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो आप देख सकते हैं 69.5% वाटर उसमें मिलता है। 13 ग्राम, चूंकि मॉइस्चर बेसिस वाटर निकालने की बात करें तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर भी इनफ अमाउंट में मिलता है, इनफ अमाउंट में मिनरल्स है एंड विटामिन है। तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन, हाउ सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी सिस्टम, आवर न्यूट्रिशन एंड आवर हेल्थ पर्सपेक्टिव। अब हम बच्चों आते हैं कुछ उन चीजों पे जो आपके इम्पोर्टेंस की हो सकती है। देखिए सोयाबीन को अभी हमने बताया कि सोयाबीन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम उसके कंपोजिशन की बात करते हैं। सोयाबीन आर द हाईली वैल्यूड फॉर देयर न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। हम शुरू से इसलिए बोल रहे हैं कि सोयाबीन की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा क्रॉप नहीं है या कोई सिंगल सीड नहीं है जिसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट एक साथ मिलते हैं। अब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, वी नो एवरीवन। बच्चों की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको हाई ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, एंड डेट आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। सोयाबीन इज आल्सो फुल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। some nutrients are also required our body, essentially required our body, but their amount is not so high. Very small amount of micro quantity is required, that is called the micronutrient. तो दो जो न्यूट्रिएंट हमारे हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोथ आर फाउंड इन हाई क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी इन द सोयाबीन। अब जो सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके लिए सोयाबीन को मोस्टली लोग जानते हैं, बट दिस इज नॉट ओनली, देयर आर अदर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट इन देयर, इसमें आपका प्रोटीन होता है। तो मोस्टली द कंटेंट ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन इज अप्रोक्सीमेटली 36 to 40% generally, but there are some additional variety, they have up to 50% of the protein. अमाइनो एसिड की हमने बात बताई कि दिस अमाइनो सोयाबीन प्रोवाइड ऑल 9 essential amino acid. Okay, that's why their quality is very good quality. अब दूसरा जो कंपोनेंट हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, आपको जानते हो दिस इज अगेन इन कैटेगरी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। सोयाबीन हैव अबाउट 30% ऑफ द our total biomass to the carbohydrate, and these soybeans carbohydrates are the rich in dietary fiber. Basically carbohydrate में monosaccharide, disaccharides, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स होता है, कई सेक्राइड्स होता है। उसके अलावा कुछ हमारे फाइबर्स होते हैं जो नॉन इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, एंड इट आर वेरी गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन एंड आवर बॉडी हेल्थ। तो उस तरह के जो डाइटरी फाइबर होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द गुड कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखता है, एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द आवर डाइजेशन पर्पज एज वेल एज सेवरल गट हेल्थ। बच्चों मैं आपको बताऊं जो हमारा गट होता है, गट कंटेन ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी की सेवरल रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट की फुलफिल है हमारे अच्छे बैक्टीरिया बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में योगर्ट आता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आता है। इनफैक्ट आजकल टीवी पे एक एड होता है काजोल जो करती है जिसको अब याकूट बोलते हैं। दीज ऑल प्रोडक्ट हैव द गुड क्वालिटी या गुड बैक्टीरिया। तो अगर हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो जितना ही हेल्दी रहेंगे, जितना ही ज्यादा रहेंगे, उतना हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और उसके हेल्थ को ये डाइटरी फाइबर हमारे मेंटेन करते हैं। इसीलिए जो हमारा सोयाबीन होता है वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। ओके, तो ये हमारी कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इस फिगर में देखें तो जो हमारी जो इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, एंड उस ओलिगोसेक्राइड का एक अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन। जो ओलिगोसेक्राइड्स अगर हम लेते हैं तो हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प मिलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प मिलता है, कोलेस्ट्रॉल इशू को मिनिमाइजेशन में भी बहुत हेल्प मिलता है। फाइनली हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेस हमारी इम्यूनिटी और हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर वेरी मच यूजफुल टू मेंटेन सच टाइप्स ऑफ इशू। So you can see this micromolecules in carbohydrate, how this important. If you see, this is the one chart where we are just describing this protein and carbohydrate.
आप देख सकते हैं कि सेवरल प्रोसेस, सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेवरल बॉडी की एक्टिविटी लाइक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसेमिक, ये बहुत थोड़ा सा अलग तरह के टर्म्स है। मैं बताऊं कि जो भी कंपाउंड हमारे बॉडी को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हेल्दी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडेंट से लड़ने के लिए उसको हम एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी जो हमारे ट्यूमर को डेवलप होने या कैंसरस के अगेंस्ट काम करता है उसको एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंटीबैक्टीरियल मतलब हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया अगर आता है उसके अगेंस्ट काम करता है, वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। हाइपोग्लाइसेमिक आप देखेंगे बेटा कि मोस्ट ऑफ द पीपुल्स आर सफरिंग इन आवर कंट्री आर द डायबिटिक कंडीशन, और भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तो जो इसके अगेंस्ट काम करता है या डायबिटीज पर्सन के लिए फ्रेंडली काम करता है, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट की बात करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी वो होती है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, या किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके एंटी का काम करती है। तो आप देखें जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटी की हम बात करते हैं, मोस्टली जो हमारे सोयाबीन के प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट उनके पास एंटी प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा सूटेड मॉलिक्यूल होता है जो सबके अगेंस्ट बॉडी को प्रिपेयर करता है। अब आप देखेंगे कि कुछ हम प्रोटीन की बात करें, इसलिए हम आपकी प्रोटीन की कुछ और चीज बता रहे हैं कि अगर बॉडी में हम जितने भी अच्छे प्रोटीन या अच्छे हाई क्वालिटी में प्रोटीन लेते हैं, तो बॉडी के कुछ फंक्शन जो डायरेक्टली इस प्रोटीन से अफेक्टेड होते हैं, दे आर बेसिकली मैनेज्ड बाय द यूज ऑफ दिस प्रोटीन। लाइक आवर डाइजेस्टिव ट्रेट, आवर डाइजेस्टिव एंजाइम इज बेसिकली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर होती है, तो डेफिनेटली जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं या डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं, दे आर इजिली गोइंग ऑन। हमारे जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ जीन होते हैं, कुछ क्रोमोसोम होते हैं, कुछ डीएनए होते हैं। इसी डीएनए के आधार पे हम अपनी बॉडी को प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं या आरएनए को एक्सप्रेस करते हैं। तो उनको जो जेनेटिक इश्यूज होती हैं या जेनेटिक हमारे प्रोसेस होती हैं, वहाँ पे भी हमारी प्रोटीन से रिलेटेड कंपाउंड की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एंटीबॉडीज आप सबको पता है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो बॉडी हैव द एंटीबॉडी, मतलब हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम होती है उस डिजीज या अदर कंडीशन से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी होती है। these antibodies is also made up of protein, means if you are taking a proper and good quality protein, our immune function भी proper हमारा रहता है। हमारी बॉडी में आपको बताएं कि सेवरल मूवमेंट होता है, सेवरल एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, सेवरल सिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक, कई बार हमारे बॉडी में डैमेज होता है, उसकी रिपेयर होती है। इस सबके लिए भी हमारी प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल कॉन्ट्रेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो हम चलते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो इसके लिए भी जो भी प्रोटीन जरूरत होती है वो डेट इज फुलफिल बाय द प्रोटीन। सो अगर आप देखेंगे बच्चों कि बॉडी की ऑलमोस्ट मेजर एक्टिविटी प्रोटीन से गवर्न होती है, दैट्स वाई प्रोटीन रिक्वायर्ड essentially to everyone, and this soybean is a very good source of that types of protein। ये हमने कुछ प्रोटीन के सोर्स की बात बताया कि जो डिफरेंट हमारे फूड्स हैं, आप देख सकते हैं किस फूड में कितनी प्रोटीन होती है और कितनी सर्विंग साइज होती है। ठीक, तो ये हमारी प्रोटीन की बात है, मीन्स दीज आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन सारे में ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ होते हैं, तो इसलिए सबको हम एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में नहीं रखते। बट सोयाबीन इज द such source of protein which is the complete proteins, complete essential amino acids। अब जो दूसरा तीसरा कंपोनेंट आता है फैट, एक्चुअली जो फैट होता है सोयाबीन के अंदर, दिस फैट इज अराउंड 18 to 20%। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो हमारे घर में सोयाबीन ऑयल आता है, दैट इज अ रिफाइंड, वो सोयाबीन ऑयल में यही फैट होता है। और मेजॉरिटी ऑफ पर्सन हमारे घर में हम लोग जानते हैं सोयाबीन इज बेसिकली फॉर द फैट। नहीं, सोयाबीन में जो तीसरा माइक्रो कंपोनेंट होता है वो फैट होता है। तो ये सोयाबीन का जो फैट होता है वो गुड क्वालिटी का प्रोटीन में आता है। अगर हम अब देखें तो फैट बेसिकली तीन तरह की होती हैं। वन फैट इज कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, अदर इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैट, एंड सम इज द सैचुरेटेड फैट। बेसिकली दो तरह की फैट कैटेगरी होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड फैट जो हमारे होते हैं वो उनको बेसिकली स्मॉल अमाउंट में लेने की रिकमेंडेशन हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए गुड नहीं होते और मोस्टली ये फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड नेचर में होते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हमारी है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, दिस अनसैचुरेटेड फैट आर गुड क्वालिटी फैट, इसको हम अच्छे फैट के फॉर्म में रखते हैं। और उसी में आपने देखा होगा कि आजकल हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात करते हैं, तो मीन तो दिस फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड basically rich in omega 3 and it is one of the component of the सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर ही होता है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी जो दूसरा फैट कंपोनेंट होता है जिसको हम फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं। ठीक,
फाइटोस्टेरॉल हमारी बॉडी के कई फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट फाइटोस्टेरॉल इज बेसिकली रिच इन सोयाबीन, ठीक। और मोस्ट ऑफ द केसेस दिस फाइटोस्टेरॉल कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अगर आप देखेंगे कि हम फाइटोस्टेरॉल या फास्फोलिपिड्स, एक हमारा ये भी लिपिड का पार्ट होता है। दिस फास्फोलिपिड्स का बहुत ही रोल होता है, हमारे मेम्ब्रेन में काम करता है, हमारे मेम्ब्रेन के सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी काम करता है, कई जगह कार्सिनोजेनिक भी होता है, प्रोसेस को कम करता है, मीन्स दे आर ह्यूज हेल्थ वैल्यू। तो इस तरह से द फैट विच इज फाउंड इन द सोयाबीन इज आल्सो a very healthy role in our body system। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात बोलते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके हमने बोला कि दे रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट बट इसेंशियली रिक्वायर्ड टू द बॉडी सिस्टम, जिसमें आपकी पहली विटामिन होती है। तो सोयाबीन आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दे इंक्लूड B1, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन। तो ये कुछ हमारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पे गुड अमाउंट में होता है। विटामिन के का आप लोगों ने नाम सुना हो, जिसको आप फाइलोक्विनोन बोलते हो। दे आर वेरी रिच इन आवर द सोयाबीन, एंड दिस विटामिन इज बेसिकली यूज्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग में। आपने नाम सुना होगा कि जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो दिस विटामिन इन्वॉल्व। एक और भी इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन ई, जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, मतलब हमारी बॉडी के जो डिफेंस है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई भी हार्मफुल चीज हमारी बॉडी में जनरेट होता है, तो जो जो उसको रिमूव करने में या टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने में इन्वॉल्व होता है, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो दिस विटामिन ई दिस इज वेरी गुड सोर्स फॉर द एंटीऑक्सीडेंट। दैट्स वाई अगर हम सोयाबीन को लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, मिनरल, सोयाबीन एक हैव अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल। इसमें दो इंपॉर्टेंट मिनरल हमारे हैं, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इनकी पूरी बॉडी में डेली बेसिस पे, डेली रिएक्शन रेट पे रिक्वायर होती है। जैसे कैल्शियम, सोयाबीन की रिक्वायरमेंट आप सबको पता है कि सोयाबीन कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्ले रोल इन द बोन हेल्थ। सो सोयाबीन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम। आयरन का भी आपको रोल होगा कि जो हमारी ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन को जो कैरी करके ले जाता है, दैट इज योर आयरन कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो दिस आयरन इज आल्सो फाउंड इन गुड अमाउंट टू सोयाबीन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बहुत सारे रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है। तो वो ये भी इसी आल्सो फाउंड इन हाई क्वांटिटी टू द सोयाबीन। तो बच्चों आप देखोगे कि मिनरल्स भी एक हमारी गुड क्वांटिटी में यहाँ पे होता है। अब हम आते हैं जो हमारे मिनरल्स हैं, फास्फोरस। फास्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फास्फोरस आल्सो वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। मीन्स अगर हम रेगुलरली सोयाबीन को प्रॉपर तरीके से ले तो हमारी बोन्स भी स्ट्रांग होगी। पोटेशियम, पोटेशियम इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी या सिग्नल ट्रांसडक्शन या एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली अब हाई क्वांटिटी में अगर सोडियम होता है तो हमारी जो हाइपरटेंशन प्रोसेस बढ़ने लगती है। पोटेशियम कम होता है तो ये प्रोसेस डिसबैलेंस की होती है। इसका मतलब अगर हमें बॉडी को बैलेंस रखना है तो इनफ अमाउंट में आपको सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस रखना होता है। तो पोटेशियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हार्ट फंक्शन और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो उसका भी हमारा बेस्ट सोर्स होता है। जिंक का आपने नाम सुना होगा कि अगर आपको रिमेंबर हो तो इन कोरोना पीरियड दो हमारे मिनरल्स को हम टेबलेट के फॉर्म में आपको देते थे, एक जिंक और एक सेलेनियम। तो ये जिंक जो हमारा था, इट इज सपोर्ट इन इम्यून सिस्टम। क्योंकि कोरोना जो हमारी बीमारी थी वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, इसीलिए हम जिंक की टेबलेट देते थे। एंड दिस जिंक इज आल्सो रिच इन द सोयाबीन फूड। इसका मतलब अगर सोयाबीन फूड को हम प्रॉपरली ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कॉपर भी इसमें हाई अमाउंट में होता है। ये कॉपर बेसिकली आरबीसी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब इफ यू आर प्रॉपरली टेकिंग a proper amount of the soybean, our blood RBC generation will be fast। मैग्नीज का आपने नाम सुना होगा कि मैग्नीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बोन फॉर्मेशन एंड एनर्जी फॉर्मेशन। जैसे आपने बोलते हो कि एटीपी हमको चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। फॉर डेट पर्पज जो भी हमारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वहाँ मैग्नीशियम का बहुत ही रोल होता है। अभी एक और भी मिनरल है सेलेनियम। ये सेलेनियम हमारी हेयर के लिए और थायराइड ग्लैंड होती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, थायरॉक्सिन को सेक्रेट करता है। या कुछ बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है, दिस सेलेनियम इज इन्वॉल्व बॉडी के थायराइड फंक्शन में, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन में एंड स्पेसिफिकली और हेयर इशू में। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है, ऑल आर फाउंड इन द सोयाबीन। मीन्स और इन अदर वे यू आस्क, सोयाबीन इज द वेरी गुड सोर्स फॉर द ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस। अब बच्चों आपको मैं बताऊं कि सोयाबीन होता है, सोयाबीन द माइक्रो रिच इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट, सोयाबीन रिच इन द माइक्रो न्यूट्रिएंट।
हम आपको शुरू में बोला था कि सोयाबीन इज कैटेगराइज इन टू वे। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे सोयाबीन को तो न्यूट्रिशन में भी आपको दिखाएगा और न्यूट्रासिटिकल में दिखाएगा। न्यूट्रासिटिकल में इस तरह समझाऊं कि कोई भी फूड अगर हमारी बीमारी को दूर करता है या बीमारी को हमारे हेल्थ इशू को अगर एड्रेस करता है, उसको हम न्यूट्रासिटिकल बोलते हैं या हेल्दी फूड्स की बात बोलते हैं। जैसे आपको बोलते हैं कि आप रोज एप्पल एक लो तो आप हेल्दी रहोगे, इसका मतलब एप्पल के अंदर जो भी कंपोनेंट है या जो भी कंपाउंड पाया जा रहा है दैट इज मेडिसिनल इन वैल्यू, उसकी एक मेडिसिनल वैल्यू है। अगर हम उसको ले रहे हैं तो दैट विल बी यूज्ड टू इम्प्रूव आवर हेल्थ वैल्यू। ओके, तो जो सोयाबीन में इस तरह के कंपाउंड होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आइसोफ्लेविन होता है। अभी हमने बताया था कि ये आइसोफ्लेविन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इज द कंपाउंड विच इज रेस्ट्रिक्टली फाउंड इन द सोयाबीन। अगर हम सारे सीड को रखें तो मोस्टली जो हमारा आइसोफ्लेविन का बेस्ट सोर्स होता है दैट इज द सोयाबीन। ये 3 तरह के होते हैं, जेनिस्टीन, डायटसिन एंड ग्लाइसिटिन, वो नाम है इस तरह के आइसोफ्लेविन का। और ये आइसोफ्लेविन को ही हम फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं। जब सोयाबीन के अंदर आप जाएंगे तो सोयाबीन को सुनिए कि सोयाबीन न तो नहीं सिर्फ ये चीज को देता है बट वो एस्ट्रोजन भी देता है, वो हार्मोन को भी देता है। तो यही हार्मोन्स के फार्म में आते हैं। लेकिन इनकी मैं आपको बताऊं कि जो आइसोफ्लेविन है, ये जो कंपाउंड है, इसकी हम लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं, साइंटिफिस्ट भी और बहुत पेपर भी स्टडी कर चुका है। और वो स्टेब्लिश किया है कि ये कई तरह के कैंसर में उपयोगी होता है, हार्ट डिजीज में उपयोगी होता है और हमारे डायबिटीज में भी उपयोगी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन में। मीन्स अगर हम सोयाबीन को लेते हैं तो उसके साथ साथ ये भी कंपाउंड आता है। और दिस कंपाउंड इज वेरी मच यूजफुल फॉर द एड्रेसिंग सच टाइप्स ऑफ डिजीजेज लाइक कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर, डायबिटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोयाबीन का एक कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई सोयाबीन को हम एक तरह से हेल्दी फूड्स या मेडिसिनल फूड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो दूसरा हमारा मेडिसिनल कंपाउंड है जिसको फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, वो हमारा सेपोनिन्स होता है। ये सब सेपोनिन्स को हम कोलेस्ट्रॉल लेवल या अपनी इम्यून बूस्टिंग फंक्शन में ऑलरेडी रिपोर्ट किए हुए हैं। मतलब अगर हम सेपोनिन फॉर्म में है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और इम्यून सिस्टम बढ़ाने में इसका रोल हो सकता है। एक और भी हमारा फाइटोकेमिकल होता है फाइटिक एसिड। ये फाइटो के मोस्टली आपको ने देखा होगा कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वी टेक द फूड एंड दैट फूड कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट एंड मिनरल, स्पेसिफिकली कैल्शियम। एंड कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द सो मेनी ऑफ द बॉडी फंक्शन, बट दैट कैल्शियम इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। तो ये फैटिक एसिड जो हमारा होता है, ये फैटिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हार्मफुल क्या है कि अगर ये फूड में है तो मिनरल्स की बायोबिलिटी को कम कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ खाने के पहले अपने या डेवलप करने के पहले किसी भी कंपोनेंट को जस्ट मेकिंग द प्रोसेसिंग, उसको हम प्रोसेस की बात करते हैं। इसका मतलब अगर हम सोयाबीन को हम प्रॉपरली प्रोसेस तरीके से लेते हैं तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द न्यूट्रिशन सोर्स एज वेल एज हेल्थ वैल्यू कंपाउंड सोर्स। अब अगर आप देखें जो हम अभी हम आइसोफ्लेविन की बात करें, ये आइसोफ्लेविन की कितनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिपोर्टेड है। दिस इज द रिपोर्टेड प्रॉपर्टी। दे प्ले वेरी गुड इन द एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी वायरल एक्टिविटी, अगर कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो आपको बचा सकता है, एंटी फाइब्रोसिस एंड स्किन इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, एंटी ओबेसिटी एंड एंटी डायबिटीज, डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइपरटेंशन के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, इंप्रूवमेंट इन आर्थ्रोपोरोसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ clinical properties established isoflavone and this isoflavone is basically found in the soybean। इसका मतलब अगर आपके फूड में सोयाबीन है, सोयाबीन कंपोनेंट है, तो उसके साथ आइसोफ्लेविन आएगा। इफ बॉडी के अंदर आइसोफ्लेविन आता है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल दिस ए हाई क्वांटिटी हाई नंबर ऑफ दिस डिजीज। दैट्स व्हाई दिस सोयाबीन इज जस्ट कंसिडर्ड ए मिरेकल क्रॉप एज ए मेडिसिनल क्रॉप फॉर द आवर ह्यूमन हेल्थ। अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी तो हमने ये बताया कि दीज कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। अब अगर हम सोयाबीन को पर 100, आपसे जैसे अक्सर हम पूछते हैं कि 1 ग्राम हम ले या 100 ग्राम, तो कितना उसमें क्या मॉलिक्यूल होता है, उसकी हम आपको थोड़ा सा आप दिए। अगर आप 100 ग्राम कुक्ड सोयाबीन को लेते हैं तो उसमें 173 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, 16.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 9 ग्राम के करीब आपको फैट मिलेगा। ध्यान रखिए कुक्ड है, इसका मतलब हमने इसमें से मॉइस्चर हटा दिया है। अब जो आपका फैट मिलेगा उसमें सेचुरेटेड फैट भी होगा, 1.3 ग्राम होता है, अनसेचुरेटेड आपका 1.9 होता है, पोली अनसेचुरेटेड आपका 0.05 ग्राम होता है। आपको ध्यान रखो कि आजकल आपके घर में भी फैट ऑयल्स आता है। और अब अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या मॉल में पढ़ते हैं, 2 टर्म अक्सर यूज करता है, हम करते हैं कि प्यूफा और म्यूफा।
ठीक, तो आप अपनी बोतल खरीदेंगे, उस पे लिखा रहता है प्यूफा। प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और म्यूफा का मतलब होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो भी तेल में जितना ही ज्यादा प्यूफा कंपोनेंट होता है ऑयल में, उतना ही हेल्दी ऑयल्स माना जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्यूफा का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, मीन्स दे आर वेरी हेल्दी है। दैट्स वाई वहाँ पे हम बोतल में जो भी कंपनी से आप लेके आते हैं वहाँ पे मेंशन करते हैं दिस इज द प्यूफा रिच, मतलब प्यूफा रिच, दिस इज द पॉल अनसैचुरेटेड फैट रिच, मीन्स दे आर हाईली हेल्थ वैल्यू आर गुड फैट, ये भी होता है। अब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है, टोटल कार्बोहाइड्रेट। उसमें 6 ग्राम आपका, सॉरी, उसके अलावा आपको 6 ग्राम डाइटरी फाइबर भी होता है। अभी हमने बताया था कि डाइटरी फाइबर कितना यूजफुल होता है हमारी बॉडी हेल्थ, हमारी गट हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, या हमारी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ के लिए। शुगर भी इसमें 3 ग्राम होता है। आपको मैं बताऊं, यहीं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सोयाबीन डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। जनरली डायबिटीज को हम होता है तो हम ग्लूकोज लेना कम कर देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की इश्यू होती है मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ पे जो हमारा सोयाबीन होता है, सोयाबीन के अंदर शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वहां पे जो शुगर होता है, या जनरली आप जैसे आप दूध ले रहे हो या और ले रहे हो, सीरियल ले रहे हो, वहां पे मोस्टली शुगर आपका लैक्टोज होता है। लेकिन इसके केस में लैक्टोज नहीं होता है, यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड होता है। तो लैक्टोज आपका डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ये ओलिगोसेकेराइड होता है, ये लेस डाइजेस्टिव होता है, ये माइक्रोब द्वारा डाइजेस्टिव होता है। तो जो भी पर्सन हमारे लैक्टोज की इश्यू करते हैं, लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है, उसके में भी उपयोगी होता है। आपको बताया कि हमारी कंट्री में मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको लैक्टोज डाइजेस्ट ही नहीं होता है, ठीक, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर प्रीफर करता है नहीं, आप काउ मिल्क मत लीजिए, आप बुफेलो मिल्क मत लीजिए, जस्ट प्रीफर द सोया मिल्क, बिकॉज सोया मिल्क एक प्रोडक्ट होता है सोयाबीन, उसमें लैक्टोज नहीं होता, उसमें ओलिगोसेक्रेट्स होता है। तो आप यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस सोयाबीन कार्बोहाइड्रेट। विटामिन की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन, विटामिन सी, B1, B2, B3, B6, इतनी क्वांटिटी में हमारे सोयाबीन के पास होता है। इसका मतलब सोयाबीन के अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। ये हमने एक आपको सोयाबीन का और पूरे सोयाबीन की जो एक न्यूट्रिशन चार्ट बनाने की बात करी है कि कितने ग्राम में आपका पर 100 ग्राम होता है। अगर हम एक कप की बात करें, जनरली घर में हमारे पास जो ग्राम से नहीं तोलते हैं, अगर हम एक कप लेते हैं तो उसमें सोयाबीन का कौन सा ऐसा बायोकेमिकल कंपोनेंट है, कितना अमाउंट में आएगा। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस फिगर की बात करते हैं तो इस पूरे फिगर्स में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स, विटामिन होते हैं, and all these component directly comes from the soybean। तो अगर आप एक ह्यूमन की मैंने यहाँ पे दिखाया कि मोस्टली न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है, हमने डाइट की बात करी है, मीन्स इफ यू आर यूजिंग द सोयाबीन एज ए फूड, डेफिनेटली योर होल बॉडी स्ट्रक्चर विल बी मेंटेन। अब सोयाबीन की बात करते हैं कि जैसे अभी हमने सोयाबीन क्यों, वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन सीड, सोयाबीन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, सोयाबीन का हमने नाम लिया कि सोयाबीन को इसीलिए गोल्डन सीड, इसमें कई चीज बनाए। अब सोयाबीन की डायरेक्टली आते हैं कि व्हाइट सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन का ऐसा नहीं सिर्फ हम प्रोटीन ले लिए, सोयाबीन में न्यूट्रिएंट के फार्म में ले लिए, हमारे पोषक तत्व के फार्म में ले लिए। अब सोयाबीन हेल्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाई दिस इज द सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर द हेल्थ बेनिफिट, बिकॉज दे हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। इसमें पहला जो प्रॉपर्टी आती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। बच्चों देखो, हम इस बात को कई बार दोहरा चुके। इसका मतलब जब भी हम लोग सोयाबीन को जानते हैं, प्रोटीन के नाम से जानते हैं, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा और भी कंपोनेंट है। और प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे, बिकॉज सोयाबीन एटलीस्ट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और व्हेन एनी फूड which is have all essential amino acids, they are just categorized as a very high quality protein। और एक और प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आपको मैंने पहले बताया था कि मोस्टली पीपुल्स इन आवर कंट्री आर वेजिटेरियन, उनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन एज ए कंप्लीट प्रोटीन। मसल्स मेंटेनेंस के अलावा और भी आपको हमने प्रॉपर्टी बताई थी। सो एवरीवेयर जहां भी आप सोयाबीन को लेते हैं, वो हमारी हेल्थ में एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। दूसरा जो चीज आता है, हार्ट हेल्थ। हमने बताया कि जो हमारी हार्ट होती है, अगर देखो कि सेवरल प्रॉब्लम्स होती है, अच्छे फूड को नहीं ले रहे हैं, अच्छे ऑयल्स को नहीं ले रहे हैं, मार्केट के हम कुक्ड फूड को ले आ रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड को ले आ रहे हैं, तो उससे हमारी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पे प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आजकल अनस्पॉट हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, कुछ लोगों की अटैक आ रही है।
तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा फैट का बहुत ही मेजर रोल होता है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन इज वेरी इफेक्टिव इन द कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन बिकॉज सोयाबीन कंटेन आइसोफ्लेविन एंड फाइटोस्टेरॉल जिसकी हम बात करती हैं, दे आर हेल्पफुल टू लोअर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो लोअर हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करने में, कम करने में इसका रोल है। और इसके जो फैट हैं वो हेल्दी फैट हैं। सो बिकॉज ऑफ दे आर रिच इन द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 एसिड। अभी हम मार्केट में जो ऑयल खरीदने जाते हैं, जिस भी ऑयल में जितना ज्यादा ओमेगा 3 होता है उतना ही उतना उसका कास्ट होता है। क्यों कास्ट लेके आप आते हो? जैसे आपने कई ऐसे आयल्स हैं ओमेगा 3 रिच वाले, उसको आप हाई कास्ट भी खरीद के ले आते हो। इसीलिए लाते हो कि जिस भी फैट में जितना ही ज्यादा ओमेगा 3 कंपोनेंट रहेगा उतना ही वो हेल्दी फैट होगा। एंड दैट इज बेसिकली कंसिडर इन आवर सोयाबीन। डेफिनेटली जो हार्ट हेल्थ हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए दो आयंस का बैलेंस बहुत जरूरी होता है, दैट इज द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। अभी हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपके फूड में देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ फूड्स में हमारा सोडियम आयंस होता है। सोडियम तो हम एक्सेस में ले लेते हैं बट पोटेशियम हम नहीं लेते हैं। आपको बताया पोटेशियम का जो बेस्ट सोर्स होता है एप्पल। एप्पल को इसीलिए बोला जाता है कि एप्पल में बहुत है और फाइटोकेमिकल के साथ साथ गुड इन पोटेशियम। तो जो भी हमारी हार्ट पेशेंट है उसमें पोटेशियम के अमाउंट का बहुत जरूरी होता है टू बैलेंस द सोडियम पोटेशियम। एंड इसीलिए जो हमारा फूड होता है, कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जिसमें पोटेशियम बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, जिसका वन एग्जाम्पल सोयाबीन है। तो अगर हम सोयाबीन को लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी ब्लड प्रेशर या मेंटेन रहेगी, फाइनली हमारी हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहेगी। बोन हेल्थ, हमने आपको बताया कि सोयाबीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ, मैंने आपको बताया कि सोयाबीन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ द फाइबर एंड दैट फाइबर प्रमोट द हेल्दी डाइजेशन, प्रिवेंट द कंस्टिपेशन। एंड फाइनली जो हमने बताया कि गट माइक्रोबायोम, बेटो देखा आपने बच्चों, यहाँ हमने वर्ड दिया है गट माइक्रोबायोम। दिस गट माइक्रोबायोम का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सोर्स। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें एक पार्ट होता है गट। दिस गट इज रिच ऑफ द गुड बैक्टीरिया, उसी को हम माइक्रोबायोम की बात बोलते हैं या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जितना भी हमारे फूड में डाइटरी फाइबर रहेगा उतना ही हमारा गट हेल्दी रहेगा। एंड दिस गट हेल्दी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रोल सो मेनी डिजीज एंड बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। इसका मतलब अगर हमारा गट हेल्दी है तो इसलिए हम हेल्दी रह सकते हैं। इसका एक और मैं एग्जांपल बताऊंगा कि देखिए हमारे जो पूर्वज थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी जो फूड स्टाइल थी और हमारे फूड स्टाइल में चेंज हो गया। हमारे जो फूड प्लेट में जो फूड्स होता है उसमें कंटेंट में चेंज हो गया। वो हमेशा दो वर्ड, हमेशा पिकल्स, चटनी और कर्ड्स लेते थे। एंड कर्ड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ द प्रोबायोटिक एंड दे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर प्रोबायोटिक देयर गट। अभी हमारे पास क्या होता है, मोस्टली हेल्दी फूड्स हमारी कम हो गई है। हमारे जो माइक्रो बायोम हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग द एंटीबायोटिक्स, वी आर यूजिंग द एल्कोहल, वी आर यूजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स एंड दे फाइनली इफेक्ट विद आवर गट। मीन्स अभी हमारा जो गट है वो अनहेल्दी हो रहा है, इसलिए हमारी लाइफ रिड्यूस होती जा रही है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फोर फादर जो थे, दे हैव वेरी गुड हेल्दी गट एंड दैट्स व्हाई देयर लाइफ। इसका मतलब यू कैन एज्यूम कि अगर गट हेल्दी है तो हमारी डायरेक्टली हमारी हेल्थ को कंट्रोल करती है। आपने दो टर्म्स अभी यूज हुआ सुना होगा, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। याकूट का नाम सुना होगा या योगर्ट का नाम सुना होगा। सो ये दिस योगर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन आवर हेल्दी गट। और जो उस बैक्टीरिया को फूड का काम करता है, बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करता है, उसके बायोलॉजिकल साइकिल को एज ए सबस्ट्रेट का काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो सोयाबीन इज नॉट गुड, नॉट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया बट दिस इज द सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट। अगर वहां पे बैक्टीरिया है तो उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसीलिए दो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक मिलकर हमारी बॉडी को हेल्थ प्रमोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाउ दिस सोयाबीन इज यूजफुल टू मेंटेन आवर इम्यून एंड आवर गट। तीसरी चीज हमारी वेट मैनेजमेंट की बात होती है। आज आजकल हर आदमी की वेट बढ़ती जा रही है, ठीक, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली मैनेज द वेट ड्यू टू द डिफरेंट स्टाइल ऑफ फूड। आजकल जो हमारी फूड की स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गई है। हाई कैलोरी इंटेक हम ले रहे हैं और प्रॉपरली कई प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। देयर सेवरल कंपोनेंट कम्स इनसाइड आवर बॉडी एंड दे आर जस्ट increasing our body weight, and due to the increase in the body weight we are suffering so many of the problem. So nowadays everyone asking to how we manage our weight, and in that cases the soybean component is also important. अभी मैं आपको बताऊं कि there is one component that is the low glycemic index। एक बच्चों ने एक कैटेगरी बनाया गया है कि एक ग्लाइसेमिक वर्ड हम यूज करते हैं, इंडेक्स होती है। जिस भी फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से नीचे होती है उसको अच्छा फूड मानते हैं या डायबिटिक जैसे पर्सन के लिए वो यूजफुल होता है। तो जो सोयाबीन हमारी होती है
ये लो ग्लाइसेमिक फूड की कैटेगरी में आती है। तो आप देख सकते हैं कि लो ग्लाइसेमिक फूड की कैटेगरी में आती है, मीन्स वो हमारी ब्लड शुगर लेवल और हंगर कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फाइनली डायबिटीज पर्सन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। कार्डियक प्रिवेंशन की हमने बात कर लगी, तो मैं फीमेल रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए दिस सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोयाबीन फूड को हम ये कंसिडर करते हैं कि सोयाबीन फूड इज द वेरी यूजफुल इन केस ऑफ द फीमेल। तो ये भी हमारा होती है। मेटाबॉलिक हेल्थ आप बोलते हैं, शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, हमारे और कई प्रकार की में भी इसका वेरी यूजफुल रोल होता है। अब मैं जो नेक्स्ट हेल्थ वैल्यू है, ये हमारे स्किन और हेयर प्रोटेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्टली अगर आप देखें कि आवर बॉडी इज अफेक्टेड टू द यूवी रेज एंड pollution, but the some of the component of phytochemicals of the soybean are like vitamin E and antioxidant. They are very much useful to protect our skin against the UV rays. कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ 60 प्रोटीन को अभी हम लोगों ने अलग उससे सेपरेट किया है। एंड साइंटिस्ट आर फाउंड दे आर वेरी गुड, प्ले अ वेरी प्रोटेक्टिव रोल इन विटामिन इन द यूवी लाइट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन प्रोटेक्शन, और जो हमारी टिश्यूज होती हैं हेयर के, उसके ग्रोथ और रिपेयर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। कुछ कॉन्जेनिटिव हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमारी मेमोरी कम हो रही है, ठीक, हमारी जो एज की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अभी आपको देखें कि सबकी एज घटती जा रही है, मीन्स वी आर फेसिंग फ्रॉम द इजली वी आर एजिंग हमारी हो रही है। तो कार्डियक इस आइसोफ्लेविन की हम बात करें कि इसमें ये माना जाता है कि जो भी बॉडी के फ्री रेडिकल होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, जितना ही बॉडी में बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी जो लाइफ कम होती जाएगी, उसको हम एजिंग बोलते हैं। तो ये पाया गया है कि आइसोफ्लेविन जो हमारा है, दे आर वेरी गुड सोर्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, तो दैट ड्यू टू दिस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उस ऑक्सीडेंट को मिनिमाइज करता है। और फाइनली अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से यूज करते रहे, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू डिक्रीज द एजिंग रेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एजिंग है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है कि दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। कई तरह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जेटिक रिएक्शंस होते हैं और एंटी इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बिकॉज दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। डेफिनेटली हमने बताया कि इम्यून सिस्टम सपोर्ट, ये भी मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ कोरोना वायरस वाज द मेनली रिड्यूस द आवर इम्यूनिटी। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द, अगर कोरोना किट का आपको याद हो, आप घर में पूछेंगे तो उसमें जिंक और सेलेनियम की टैबलेट दी जा रही थी, बिकॉज दैट टाइम आवर इम्यूनिटी बूस्ट इज रिक्वायर्ड। और दैट इम्यूनिटी सिस्टम सपोर्ट एंड बूस्टिंग सिस्टम इज सपोर्ट इज बेसिकली यूटिलाइज दिस जिंक एंड सेलेनियम, एंड सोयाबीन इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक एंड सेलेनियम। दैट्स व्हाई इन कोरोना पीरियड the health purpose or Ministry of Food and other are basically recommend to take a highly processed and properly used of the soybean, and that will be really play a very important role during the corona period. आप suppose कर सकते हैं कि almost all the common the health issue is basically addressed by this soybean. ये मैंने आपको बताया कि ये सोयाबीन क्रॉप होता है, सोयाबीन का सीड होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इन नटसेल these are the several property where the soybean play important role. मुझे लगता है कि अगर आप देखने के बाद देखेंगे कि जितने भी अपनी बॉडी की आप प्रॉब्लम समझते हैं, each and every are included in this slides, means soybean really play a very important role to maintain your complete health. But one thing is very important, whenever we are using the soybean, the processed soybean, the proper use of soybean is very important. Okay, if you see, this is the total soybean used: 80% in the meal, 20% in the oil, 68% in the food, out of 100%, some in the industry and industry. That's why this soybean is not only important for the food. The soybean composition is very much favorable for the your oil industry, your feed industry, your food product development industry, and several industrial use property. Means if you just explore, or if you want to make our own business, if you want to develop our own entrepreneurship, or if you want to develop our own industry setup, it will be very helpful to develop all types of the setup. So, friend, basically we deal why soybean is the miracle crop, why soybean is the golden seed, why soybean is the important due to their composition, why soybean is the, how soybean is
involved in the several health property, and we just come in our area. Why soya food best? Why development of soya food best will be very much useful, very much important for to maintain the world health. So if you come to this point, what's healthiest foods? If you develop the soya-based food, definitely it will become the very healthiest food. It will become the excellent source of high quality protein. It will become the various health benefits. Good substitute for the animal protein. This is very important. Nutritional value equivalent to the animal protein. All essential amino acids for the human diet. Means this is the although plant source, but it have the equivalent to the animal source. शुरू में हमने बताया था कि जो एनिमल प्रोटीन होते हैं बहुत ही कॉस्टली हो सकती है मीन्स दे विल बी द दिस इज द वन ऑफ द अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स इन वेरी लो कास्ट इन एडिशन टू द एनिमल प्रोटीन लेस सैचुरेटेड फैट होता है मैंने बताया कि जितना जिसमें सैचुरेटेड फैट कम होगा उतना ही अच्छा होगा तो दिस इज अगेन द फूड विच प्रिपेयर्ड बाय द this soybean developed by the soya base it will be definitely less fat and definitely soybean is the good source of the various phytochemicals means they will be useful to numerous health food means if we develop the food if you convert this soybean for the food purpose definitely they carry all the property okay definitely high quality protein especially soybean so these all will be associated with the soybean so whenever or where soybean goes in the form of food product all these property will be just associated with the that foods अब फ्रेंड एंड बच्चों देखिए सोयाबीन को किस किस फार्म में हम फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं वी आर यूजिंग होल सोयाबीन इसको हम फुल डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं फुल सोया फ्लोर में कुछ डेयरी एनालॉग भी हम बना रहे हैं हम फर्मेंटेड फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ हम स्नैक्स भी वी आर डेवलप जहाँ पे हम होल सोयाबीन को कन्वर्ट करते हैं कुछ जगह हम पार्शियली डिफेटेड सोयाबीन मतलब उसके फैट को निकाल लेते हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि जब सोयाबीन के हम फैट को निकालते हैं ऑयल बनाने में ऑयल हम ऐसे ही बनाते हैं कि फैट उसका निकाल लेते हैं और उसके अलावा जो कंपोनेंट होता है उसको हम फिर और कंपोनेंट बदलते हैं तो हमारा मीडियम फैट फ्लोर होता है और अदर प्रोडक्ट जैसे आपके घर में जो चंक आता है बेसिकली ये डिफेटेड सोया फ्लोर होता है जहाँ पे हम फैट निकालने के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अभी हमारे पास फुल्ली डिफेटेड सोयाबीन होता है जिसे सोया मिल आपको बोलते हैं ये फुल्ली डिफेटेड सोयाबीन जो पार्ट होता है इसमें हम फैट को निकाल लेते हैं और बचे हुए पार्ट को हमारा जिसमें फैट नहीं होता है उसको कई बेकरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं आज आपने देखा होगा कि मार्केट में कितने टेक्सचराइज सोया प्रोटीन है अगर आप देखो तो मार्केट में सोया बेस्ड आपके कई प्रोडक्ट हैं जो टेक्सचराइज प्रोटीन की हम बात करते हैं वैसे तो आपको लगेगा कि ये हमारा मीट सोर्स है लेकिन दैट इज द मीट सोर्स नहीं है ठीक तो ये हमारे टीएसपी होते हैं कई सोया प्रोटीन आइसोलेट कंसंट्रेट बना रहे हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट को रिमूव करके प्योर प्रोटीन की हम बात करते हैं उसे एक हाइड्रोलाइजेट भी बना रहे हैं हम आइसोलेट भी बना रहे हैं इनफैक्ट आपको बताया भोपाल भोपाल सिटी में एक मंडी द्वीप है मंडी द्वीप में एक बायो न्यूट्रिएंट करके कंपनी है बेसिकली वी आर वर्किंग टुगेदर जो वहाँ पे सोया मिल्क पाउडर बनता है और फॉर यूजिंग दिस सोया मिल्क पाउडर यू कैन डेवलप सोया मिल्क टोफू पनीर इनफैक्ट एनी टाइप्स ऑफ स्वीट वेयर मिल्क पाउडर यूजिंग तो ये हमारे सारे सोयाबीन के कई डिफरेंट फूड प्रोडक्ट जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं अब अगर हम आपको बताएं कि जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं अभी हमने बात करा है उसको अगर इफ यू कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट जैसे आपको डिफेटेड सोया फ्लोर में बताया यहाँ पे प्रोटीन 53 ग्राम 100 ग्राम में होगा वही आपको टेक्सचराइज सोया प्रोटीन की बात करते हैं तो आपके 60 ग्राम पर 100 ग्राम होगा आप व्हीट फ्लोर लेते हैं जो घर में खाते हैं वहाँ पे आप 10.3 ग्राम होगा आप कॉर्न फ्लोर लेते हैं आप वाइस फ्लोर लेते हैं आप व्हीट सोया फ्लोर लेते हैं आप मेरे दिखाने का पर्पज ये होता है कि अगर आप सोया फ्लोर को यूज लेते हैं तो दे आर वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन वहीं अगर आप राइस फ्लोर लेते हैं या व्हीट फ्लोर लेते हैं आप देखें ऑलमोस्ट 5 गुना कम प्रोटीन है तो दैट इज द ब्यूटी कि अगर हम इस प्रोडक्ट को इस कंपोनेंट को अपने फूड में शामिल करते हैं तो हमारा फूड कितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन के फॉर्म में हो जाएगा डेफिनेटली अभी हम बात करते रहे कि अगर हमारे प्रोटीन में सोया बेस्ड प्रोटीन आता है तो कितना उसके हेल्थ वैल्यू और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये हमारे एक डाटा आपको हमने दिखाने की कोशिश करा है अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लीजिए हम अपने अपने पास क्या रखता है कि एक तो ऐसा सोर्स है देर आर सम सोर्स विच इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट उसमें कास्ट ज्यादा लगाना पड़ता है उसको खरीदने में हमको ज्यादा कास्ट लगाने की पड़ती है तो इस केसेस में अगर आप कंपेयर करेंगे अदर प्रोटीन सोर्स से सोया प्रोटीन सबसे सस्ता पड़ता है कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम प्रोटीन हम बॉडी को देते हैं सोयाबीन से लेते हैं और 100 ग्राम प्रोटीन अगर हम एग से लेते हैं तो दोनों प्रोटीन के सोर्स हैं लेकिन उनका अमाउंट
उनको कास्ट वैल्यू में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने बोला कि फुल फैट सोया फ्लोर लेते हैं तो 75 लगता है। ओके, 1 kg प्रोटीन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। एक से अगर अगर आप लेते हैं तो 250 लगता है, मिल्क से लेते हैं तो 300 लगता है, चिकन से लेते हैं तो 600 लगता है। आप देख सकते हैं कि कंपेरेटिवली जितने भी हमारे प्रोटीन सोर्स हैं, ठीक, अप्रोक्सीमेट की अगर हम बात करते हैं, डाइवर्सिफाई करता है, इसमें सबसे कम और सबसे चीप हमारा सोया प्रोटीन है या सोया बेस्ड प्रोटीन है। इसीलिए मोस्टली अभी जो हमारे माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, जहाँ पे बच्चों में प्रोटीन की कमी है, जहाँ पे बेसिकली प्रोटीन चाहिए होती है और अदर सोर्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो वी आर रिकमेंडिंग टू यूज ऑफ दिस सोया प्रोटीन। अब ये अगर आप स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने ट्री बनाया है, ठीक, and basically these are the product which are we are developing in our laboratory। देखिए अब इसमें अगर आप सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन से हम डायरेक्टली कुछ होल सोयाबीन को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको होल सोया प्रोडक्ट बोलते हैं। इससे हमारे यहाँ एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ सोयाबीन है हमारे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमारे काफ़ी पर्सनस हैं, तो इस पे काम इनके लिए रखे हमारे टेक्निकल ऑफिसर हैं, सम अदर एक्सपर्ट। तो वो सोयाबीन को डायरेक्टली इस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें होल सोयाबीन को हम सोया नट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, उसको फ्राइड कर सकते हैं, हम उसको रोस्टेड कर सकते हैं, या जो सोयाबीन हमारा है फुल फैट जिसमें हमसे ऑयल नहीं निकाल रहे हैं, उसको हम कई तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें हमारे सेंटर में। जैसे आपका फ्लेक्स बना दिया, सूजी बना दिया, सत्तू बना दिया, बेकरी प्रोडक्ट्स में हम लोग भी कई बिस्किट्स के फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेड रस्क के फार्म कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तीसरा फार्म है जिसको हम सोयाबीन को एक्वस फार्म बनाते हैं, उससे सारे प्रोटीन को और चीज को हम एक्सट्रैक्ट करके एक्वस बनाते हैं, पानी के फार्म बनाते हैं, उसको हम सोया मिल्क की बात करते हैं। तो हमारा सेंटर सोयाबीन से सोया मिल्क भी बना रहा है। उस सोया मिल्क को हम कई तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको योगर्ट में भी डेवलप कर रहे हैं, उसको हम अगर आप देखेंगे तो सोया पनीर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम आइसक्रीम में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कर्ड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, लस्सी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, अमरखंड में भी कन्वर्ट करते हैं, श्रीखंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स सोयाबीन अगर आप देखें तो सारे सेक्टर में बहुत से है। पनीर अगर हम बनाते हैं तो पनीर भी वी आर डेवलपिंग सो मेनी ऑफ द प्रोटीन। ये इंडिकेट करता है कि अगर हम वी वांट टू यूज दिस सोयाबीन फॉर रेगुलरली पर्पस, we can also establish some industry in the form of this, or this will be helpful to in our food system। सोयाबीन के जो बाई प्रोडक्ट है आप देखें ओकारा, और उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नोवेल प्रोडक्ट जो मोस्टली बिल्कुल नोवेल है, जिसमें एक सोया चीज स्प्रेड है, ये प्रोवाइड है कि रिसेंटली इसका हमें पेटेंट मिला है, उसको डेवलप करते हैं। सोयाबीन से हम सोया बटर कन्वर्ट कर रहे हैं, सोयाबीन से हम कल्चर मीडिया डेवलप कर रहे हैं, हम फर्मेंटेड सोया मिल्क कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोबायोटिक सोया मिल्क पाउडर, जैसे आपके नॉर्मल स्किन पाउडर होता है उस तरह से हम लोग प्रोबायोटिक सोया मिल्क पाउडर कन्वर्ट किए हैं। उसमें कई तरह के हम रेडी टू ईट या रेडी टू कुक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, हम स्प्रेड डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने सोया स्मूथी डेवलप किया है, अभी हमने सोया स्प्रिंकल डेवलप किया है। तो ये सारे हमारे वो प्रोडक्ट हैं, दे आर हाईली नोबल एंड हाईली गुड प्रोडक्ट विच यू कैन डेवलप। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं या इसकी बात करते हैं तो देर आर ह्यूज पोटेंशियल टू द सोयाबीन फॉर द फूड प्रोडक्ट डेवलप इन फूड, डायरेक्टली फूड मार्केट। ये कुछ प्रोडक्ट की हम आपको बात कर रहे हैं जहाँ पे इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वी आर डेवलपिंग। अगर आप मार्केट में जाएं तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर द बेसिकली सोया बेस्ड। जैसे आपके टोफू की हम बात करें, नट्स की बात करें, योगर्ट की बात करें, टेम्प की बात करें, या आपके कुछ फ्रोजन फूड्स की बात करें, या सोया कल्स की बात करें, या सोया मिल्क की बात करें, ये आप देखें यहाँ पे सोया चंक की बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोया चंक, सोया ऑयल and some other innovative products market में available हैं। These all are the soya products। So soya have a very huge potential, a huge market in now the international level। तो सोयाबीन इन फूड, अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे कि कहाँ पे हम सोयाबीन को यूज कर रहे हैं, सोयाबीन को होल सोयाबीन में भी हम यूज कर रहे हैं। सोया मिल्क की फार्म, देखिए सोया मिल्क का फार्म बहुत सिंपल प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। सोयाबीन को हम 3 और 4 स्टेप में एक्सट्रैक्ट करके सोया मिल्क बनाते हैं। और सोयाबीन में बताएं, सोयाबीन की जो मिल्क होती है इसमें प्रोटीन भी अच्छी होती है, फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल मिल्क से यह डिफरेंस होता है कि नॉर्मल मिल्क कंटेनिंग लैक्टोज, सोयाबीन हैज डज नॉट हैव लैक्टोज। ठीक, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोगों ने अपने सुना होगा कि इस बार ग्लूटीन रेजिस्टेंस, ग्लूटीन की हम बात करते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं, ये दोनों चीज सोयाबीन में नहीं होता है। इसका मतलब जो इश्यूज है मोस्टली हमारी सोया मिल्क में या सोयाबीन बेस्ड प्रोडक्ट में नहीं है। जिसमें सबसे एक बेटर सोया मिल्क प्रोडक्ट है, दैट इज द सोया मिल्क। इसको हम डिफरेंट मार्केट में अगर देखें तो डिफरेंट फ्लेवर्स या डिफरेंट बेवरेज के फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस किया है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं टोफू। दिस इज द मोस्ट एंड हाईली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, जिसमें हम जैसे आप घर में आप पनीर खाते हैं तो हम काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क से बनाते हैं। यहाँ हमने वी आर जस्ट डेवलपिंग द पनीर, इसके पनीर को हम टोफू बोलते हैं बाय यूजिंग सोया मिल्क। सोया मिल्क को हम बेसिकली कोआगुलेंट करते हैं, फाइनली आपको पनीर। तो यू कैन जस्ट सी दिस इज द पनीर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोया मिल्क। इसको हम आज के समय में कई तरह से यूज कर सकते हैं एज लाइक आवर योर होम पनीर। टेम्प भी हम यूज करते हैं मोस्टली, जब हम इस केसेज में कोआगुलेंट का यूज करते हैं तो इसको मैसेज टोफू देखा नहीं बोलते हैं। मैंने। हेलो, सो दिस टेम्प इज आल्सो वन ऑफ द फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट। वो हाँ, वो आप देख सकते हैं, दिस इज द टेम्प एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इन द चाइना। सो वी आर आल्सो डेवलपिंग सच टाइप्स ऑफ नोवेल प्रोडक्ट। हम मिजो भी प्रोडक्ट करते हैं, ये भी एक तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सोया सॉस का नाम सुना होगा, दिस सोया सॉस इज आल्सो वेरी हाईली डिमांडिंग product in the market, which is basically developed by the fermentation by using the soybean. Natto, which is again one of the important product, which is not common in our country, but in Japan and China, they are very common products. So these are the some products. Soya flour, you can imagine this is the soya flour, जहाँ पे हम सोयाबीन को प्रोसेस, we several time ask to recommend this सोयाबीन as a processed सोयाबीन। इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी सोयाबीन को यूज करना है उसको प्रोसेस यूज करना है। I will also tell in the in which will be the preferable for your home। सोयाबीन प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो अभी सोया चाप आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस दे आर मोस्टली यूजिंग द सोया चाप एंड different types of products of meat alternative milk, they are basically the texturized vegetable protein। They are looking in taste, looking as well as in taste as a animal protein, animal source, but they are mainly developed from the soybean. By using some special technology, we have developed some protein in the form of texturized. So this is again one of the important product in the market comes from the soybean. It's soya yogurt. This is one of the product, and basically I am the person who are working on the probiotic. And as initially they asked that our 2 book is also just awarded for the best book of the year. One of the book is the probiotic book. So this soya yogurt and probiotic soya cheese spread we definitely develop currently, and we also got the patent from this. So this soya yogurt is very important because they have property of almost all the soybean, property of the probiotics, as well as other properties. So it will be very good for the health perspective, as well as very good alternative for the yogurt. And currently, if you see, we have also working, and some other persons, partners are in our group also working on the soya-based infant formula, like the bionutrient. We asked that there is a one industry in the Bhopal, Mandideep. They are working on the bionutrient, and we just developed several powder-based formula for the children. So this formula, soya-based infant formula, we are using an alternative cow milk-based formula, specifically for the children who are the lactose tolerant. So these are the some if you see, I'm not describing now the some common and the inter basic levels of product. These all are the some innovative products which are the either developing in different form and available in the market. We are basically, if you see, I several times asked that the one of the medicinal component of soybean is the isoflavone, and we are several companies, are several medicines, they are using the isoflavone and developing several tablets and other food, other the supplement for the as a medicine. So this So can we start wrapping up? I'm yeah. because Yeah, sir. I am just coming to the conclusion. so Okay. I just don't want to interrupt you because your presentation is quite informative, but however, we've been beyond 25 minutes. Oh, we will finish within the 5 to 7 minutes. Okay. Sure, sure. So if Thank you see this, why soybean as a medicine? These are the some medicine isoflavone, and this is the component of the soybean. So this soybean in the different form are very much useful. Currently they are just utilizing to the tablet development for the your menopausal diseases, or antioxidant, or bone health, or in fact the cancerous anti-cancerous diseases. Saponin is again one of the important component which we discussed will be the lower the cholesterol and boost immunity. So if you see, these are the component like in the form of phytosterol, definitely helpful in the lower cholesterol level. Lecithin, this is the component where we are working, and this is the component which is basically obtained after the some byproduct. So these all, if you see, this is the fibers. If you see, all these components and phytochemicals are rich in the soybean,
and currently we are just developing for the medicine. If you see, these all are the medicinal use: soya flavin supplement, soya protein isolate, lecithin supplement, fermented soya products. So several things are important. If you see, सोयाबीन, हमने आपको बताया कि सोयाबीन बहुत ही अच्छा है, बट दे हैव सम इश्यूज. सोयाबीन के अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होते हैं, एंड सम केसेस दिस इशू इज आल्सो एसोसिएटेड लाइक एलर्जी. तो वी ऑलवेज एडवाइज सम इंडिविजुअल मे बी एलर्जी टू सोया शुड अवॉइड द सोया प्रोडक्ट. लाइक कुछ एलर्जीज होते हैं डेट आर लाइक थायराइड ग्लैंड वाले जो होते हैं या थायराइड पर्सन होते हैं, वहाँ पे कुछ केसेज में रिपोर्टेड है. इन सम केसेस the persons are very sensitive to the hormonal effect. तो वहाँ पे भी हम इसको प्रीफर करते हैं कि जस्ट चेक आइदर यू आर सेंसिटिव और नॉट. प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया कि सोयाबीन दे हैव 99% पॉजिटिव थिंग, बट सम कंपोनेंट आर जस्ट एंटी न्यूट्रिशनल. एंटी न्यूट्रिशनल आर दोज कंपाउंड विच नॉट फेवर इन द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी. जैसे आपने ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ऐसे कई और कंपोनेंट होते हैं. So we always advise that before using to this soybean as a food, please and please use the processing. Processing, either heat processing, either your boiling or other methods of the processing, that will be compulsory required before using as a food. So if you see, these are the several processing processing steps where we are using. Like soybean, when processed clean husk, it becomes the soya, the soya chips and full fat flour. So if you see, these blue part are the product and other are the processing steps. In some cases, we are using soaking, dehulling, grinding, separation, and make the soya milk. And finally, in the soya milk, using the some calcium sulfate addition or the coagulant to make a curd. So these all are the different steps for the different product. So we always prefer, we always ask, if you see soybean, if you are using the soya milk, so this processing stage is required, like soaking is compulsory, dehulling is compulsory, grinding is compulsory, and heating is ultra compulsory. And after that, it become in the edible form. So this is the very common flow chart where we are using the production of compound by using the different processing. इफ यू सी बच्चों, दिस इज द एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड प्रोटीज इनिमिटर. ये अगर एज सच हम लेते हैं तो हमारी प्रोटीन डाइजेशन को प्रॉब्लम करती है, इसीलिए इसकी हम प्रोसेस करके लेते हैं. टेनिन लेते हैं तो हमारे मिनरल्स या कई फिनोलिक कंपाउंड की बाइंडिंग में इफेक्ट करता है. फाइटिक एसिड लेते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का होता है. तो इसके लिए जब हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, हीट ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, तो दे कन्वर्टेड देयर फॉर्म, और इनका जो इफेक्ट होता है एंटी न्यूट्रिशनल वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसीलिए प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चीज आप जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं, सेपोनिन, ऑक्जेलेट, दे आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी, बट दे आर नॉट प्रेफरेबल टू यूज डायरेक्टली. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेसिंग व्हिच वी डिस्कस इन द अर्लियर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा फाइटिक एसिड होता है, ये भी हमारा एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है. मीन्स अगर हम प्रोसेस करके खाते हैं तो सेम कंपोनेंट मेडिसिनल वैल्यू उसकी और बढ़ जाती है. सो दिस इज द सम प्रोसेसिंग स्टेप. आप देख सकते हैं कि ये रात सोयाबीन को हमने जब सोकिंग, जर्मिनेशन, रोस्टिंग, फर्मेंटेशन कर दिया तो ये बहुत ही उपयोगी होगा. इसमें टेनिन कम हो गया, क्रूड प्रोटीन हमारा बढ़ गया, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ गई. ठीक, मीन्स हमारा पर्पज प्रोसेसिंग का ये होता है टू रिड्यूस आर टू जस्ट रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड इंक्रीज द ऑफ योर यूजफुल सब्सटेंसेज इन द सोयाबीन. सो ये हमारी कई एरिया प्रोडक्शन की बात है. ठीक, ये अगर आप देखें तो सोया इंडस्ट्री इंडिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स ये नंबर हैं. दीज आर द प्लेसेस वेयर सोयाबीन इज यूटिलाइज एज ए सोयाबीन इंडस्ट्री. तो ये हमारी एक छोटा सा चार्ट है जहाँ पे हम मेनटेन एक प्लांट अगर हम लगाना चाहें ऑयल एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्री में तो हमारे इतने इतने खर्चेज हैं. ये हमारा सोयाबीन है, फूड कंजम्पशन के भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट फार्म में. तो दीज आर द फार्म्स वेयर सोयाबीन कैन बी यूज एज ए फूड. दीज आर द फार्म में सोयाबीन को हम फीड के फार्म करते हैं. ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वे सोयाबीन को हम इंडस्ट्री के फार्म में ले जा सकते हैं. ठीक, ये हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करेंगे. सोयाबीन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट मार्केट आप देख सकते हैं कि अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी ईयर सोयाबीन की मार्केटिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड बेवरेज बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है. सो द डेवलपमेंट और establishment anything for the business purpose in the soya industry is very significant. Okay, friends, I have some message from our group. Basically, these are the some things related to our soybean. So just because in majority of our audience are the children, so we just want to give some message to our children.
And because if you see, this is the one words we try to quote here. A person who never made a mistake, never tried anything new. So this soybean is again such type of thing. You must be comes here, or in study. This is also apply for your study. डेफिनेटली हम मिस्टेक से डरते हैं, लेकिन मिस्टेक से डरना नहीं है। मिस्टेक से अगर हम डरने लगें, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमने कुछ किया ही नहीं। सो नेवर हैव एनी हेजिटेशन टू वर्क। इफ यू मेक योर वर्क प्रॉपर्ली, डेफिनेटली द चांस ऑफ मिस्टेक विल बी मिनिमाइज्ड। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे, तो मिस्टेक आपकी दूर नहीं होगी। डेफिनेटली एक मैसेज और भी हमारा होगा इन फ्रॉम आवर ग्रुप। The recipe of success, children, you are in very earlier age, and you have all have the potential to develop so many things. think कल आपके में से कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई आपको जो चीज़ भी आपके चीज़ें होंगी, सपने होंगे, वहाँ जा सकता है। तो नाउ-ए-डेज़ देयर आर एवरी फील्ड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्कोप, ठीक? लेकिन उस स्कोप तक जाने के लिए डेफिनिटली आपको ये रेसिपी मैं बता रहा हूँ। स्टडी व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग, work while our others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. If you follow, this is required to become a successful person in the life. So this is the thanks to our research group and thanks to everyone. And I have also one message to our this little master. All the our children, we are the in the I think beginning classes. Definitely striving for success without hard work is like trying to harvest where you have not planted. जनरली हम क्या होते हैं कि हम सोचते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे। आप खुद सोचो कि अगर हमने बीज नहीं बोया तो प्लांट कहाँ से बनेगा? इसका मतलब अगर हमको प्लांट लगाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, देन यू थिंक, देन यू कोस्ट कि हमको इस तरह की सक्सेस होनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर आपकी प्रैक्टिस, ये आपको ये अप्रोच यूज़ करना है इन योर करियर। प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर ओन and perform like you have never lost. This is your criteria for your life. And definitely, I hope each and every person got some information from my lessons, my this chapters also. And this is my final exercise because this is the diet, health, and nutrition related, specifically the golden seed soybean related lecture. And my one message is also to for our health. This is for all, it's not only for children. Please, exercise is king, definitely very important. Nutrition is queen, that we have discussed. So put them together and you have got a kingdom. So you want to become a kingdom, for exercise and nutrition combination is very much requirement. And thank you everyone, and thank you this camp group to invite me and to give me opportunity to interact our this group in which most of our students are associated, and I hope some faculty members are also associated. And thank you very much to provide these opportunities to interact with. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Tripathi, for this enlightening session. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to you for your invaluable contribution to the success of this 54th fortnightly session on soybean innovation, health processing, and business development. Your expertise as a scientist has brought a unique and insightful perspective to this workshop. I'm sure that we have a wide audience who have been inspired by you and would do great wonders just like you for our society. Thank you. Thank you so much, Dr. Tripathi, for this impactful session. I think we can just take a few questions from the students. Yeah. For the students, if you would have any question, please turn on your video and virtually raise your hand. We will connect you one by one and you may ask your question directly to Dr. Tripathi. So you have any questions? Please raise your hand, turn on your video. You can even type your questions in the chat box below. I'll convey your question directly. Yeah. I think most of the question is basically for our students as a compliment. And children, you are the most welcome, because this is a very good experience to just convey my things to you people. And most of the cases, my audience is basically
the industry person or the scientist. But today I am very happy to I tried my message to convey, because in most of you peoples are our the futures of our country, and definitely some of you will be also come associated with the scientific field, or some are in the other field. But ultimately you are the persons in your family who can guide your mothers and fathers, that definitely we can take care in our health and nutrition. And I think if you have any query, any little query is query, and that is always good. So children, if you have any query related to anything, although it's very small thing, don't worry. How many participants are there? We have more than Aniket ji? 100. Okay, almost all are the student. Yes, sir, all are students from class Okay, 3 to 12. okay. So anyway, this Thank is you. mm, So once again, thank you so much, Dr. Tripathi, for your time, wisdom, and passion in contributing to the success of this workshop. We would, we'd like to look forward to the possibility of collaborating with you again in the future, maybe on a different topic, anything for the students. so definitely if you want to visit and other anyway, and I will be always okay from my side, and it will be really opportunities to interact and serve for that our little chap. Definitely, definitely. Yes, sir. Okay. And thank you, Aniket ji, for your nice hospitality and other The thing. pleasure is all ours. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you. So can we leave? Yes, sir. Yes, sir. I'll just Okay. leave some links for the students. And Okay. so Okay. thank you. Thank you so much, sir. Okay. Welcome. Hey, students, I'm just sharing a survey form. This is learning environment survey that will, help us understand your learning environment. And with this survey, we can assess your environment and we can help you become better, and we can help find the resources that are being provided to the students and how we can help other students with the same. So please take your time and fill this survey form. It won't take much time. So I'm leaving the link in the chat box below. Take your time, you can copy it and you can fill it later. So everyone, please can you copy the link? There's a link in the chat box. Make sure you copy that link and save it in your notes somewhere. And take your time after this meeting, you can take your time and fill the form. Okay, thank you so much. Now we will end the session and we will all meet soon for another exciting session by CAM. Thank you so much, everyone. Thank you.